بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ سے پھر ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد کے 5 مقدمات میں حفاظتی ضمانت میں 27 مارچ تک توسیع۔ جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار حسین پر مشتمل 2 رکنی اسپیشل بینچ نے عمران خان کی تھانہ کنہ اور رمنا کے 2 اور بھارا کہو کا 1 مقدمے میں حفاظتی ضمانت منظور کی۔ کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل نے اسلام آباد میں ضمانت زیر التوا ہونے کا بیان حلفی جمع کروایا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے کہ ضمانت میں توسیع کر رہے ہیں کیونکہ وہاں ضمانت زیر التوا ہیں۔ بیان حلفی غلط ہوا تو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف اسلام آباد کی عدالت نے خاتون جج دھمکی کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ قابل ضمانت وارنٹ میں تبدیل کر دیے۔ پی ٹی آئی پہلے معافی مانگے پھر مذاکرات ہوں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے تحریک انصاف کو 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اب پاکستان کی سلامتی پر حملہ آور ہے۔ ریاست کی کن پٹی پر پستول رکھ کر بات نہیں منوائی جا سکتی۔ اس رویے کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا ممکن نہیں۔ وہ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے اور پنجاب کے الیکشن کے التوا پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ عجلت میں دیا، ہم نے اسی جلدی میں مشرقی پاکستان توڑ دیا تھا۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے جاننے کے لیے ہمارے نمائندہ ویس کہنے کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے خصوصی گفتگو کی احسن اقبال کے ساتھ۔ جی احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ایک تو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ تاریخ آگے کر دی ہے اور جن خدشات کا آپ ذکر کرتے تھے ان میں سب سے اہم جو ہے مردم شماری کا تھا، تو آپ اب کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ اب پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایک ہی بات کر رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے، یہ توہین عدالت ہے، الیکشن کمیشن نے کی ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ جلد از جلد آئے، اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے سے پہلے میرے لاتعداد بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ جس میں نے کہا تھا کہ ملک کے عام انتخابات آئینی مدت اسمبلیوں کی پوری ہونے کے بعد اکٹھے اکتوبر 2023 میں ہوں گے۔ اس لیے کہ پاکستان کے آئین کی جو سکیم ہے اس میں سب کو برابر موقع دینے کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات ہمیشہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں کسی جمہوری جذبے کے تحت نہیں توڑی تھیں، وہ ایک سیاسی خودکش بمبار کے طور پہ اسمبلیاں توڑ کے چاہتے تھے کہ پورا نظام گر جائے۔ وہ نظام نہیں گرا، لیکن اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ریاست کی کن پٹی پر پستول رکھ کے، وہ اپنے مخالفین کی کن پٹی پر پستول رکھ کے انہیں گالی گلوچ دے کے ان سے کوئی اپنی بات منوانا چاہتی ہے، تو اس طرز عمل کی اگر حوصلہ افزائی کی جائے گی تو پھر پاکستان میں جو انتہا پسند گروپ ہیں وہی راج کریں گے، یہاں پر آئین اور قانون راج نہیں کر سکتا۔ عمران خان کو پاکستان میں نیا ہٹلر بننے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تھینک یو۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے 8 اکتوبر کی تاریخ تجویز کر دی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ صوبے میں دہشت گردی کی تازہ لہر آئی ہوئی ہے۔ دہشت گردی کے بعض واقعات میں سیکیورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گرد حملوں میں 1 بریگیڈیئر اور 7 جوان شہید ہو چکے۔ ان حالات میں پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی 8 اکتوبر کو ہی انتخابات کرائے جائیں۔ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت اکتوبر میں ہوں گے۔ معاشی حالات سال میں 2 مرتبہ الیکشن کی اجازت نہیں دیتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے عمران خان کا قتل کی سازش کا بیان جھوٹ قرار دیا۔ کہا امریکہ سے بیانات دینے والوں کو حقیقی صورتحال بھی دیکھنی چاہیے۔ Actually attacks the courts or the courts are mobbed by his supporters. Police is sent to his residence to arrest him and produce him in the court. The police is attacked with Molotov cocktail, firing, and at least 70 to 80 police officers, senior police officers including, who were injured trying to arrest him. Our leader, Nawaz Sharif, was arrested. He came back from UK to surrender. His daughter was arrested. The present Prime Minister was arrested. His son was arrested. Their nephews were arrested. Nawaz Sharif was removed from government thrice. Imran Khan is a desperate man. This allegation of conspiring to murder him, I think this is, stretching a bit too far. The sort of
lies he has been fabricating over the last 1 year, starting with Cypher. I'll again say that. Obviously, national elections are due in October, and they will be held on time. Terror incidents have increased. They have escalated over the last 2-3 months. We will not be able to provide funds for elections, which are, if you hold these elections now on 30th of April, and then again in October. So you are providing funds for the elections twice in a year. सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम ख़त में इलेक्शन के अल्तवा और गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश किया है। सदर का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाने पर जोर। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन के ऐलान पर अमल नहीं किया। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ और सरकारी महकमों ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका हुक्काम को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत करें। सदर ने ख़त में सियासतदानों, कारकुनों, सहाफ़ियों और मीडिया के खिलाफ मुतादिद मुक़द्दमात पर तशवीश का इजहार भी किया। सदर ने वज़ीर आज़म से कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतल्लिका इंतज़ामी हुक्काम को इंसानी हुकूक़ की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। उन्होंने बुनियादी हुकूक़ से मुताल्लिक़ आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का भी हवाला दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सदर के वज़ीर आज़म के नाम ख़त पर शदीद रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी अपनी औकात और आइनी दायरे में रहें, इमरान खान से दहशत गर्दी करने का जवाब लें, इमरान खान के हुक्म पर पपेट ना बने। राना सनाउल्लाह ने सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आइन और कानून शिकन आइनी ओहदे पर मुसल्लत है। कलमे पढ़ते हुए सियासी मुखालफिन पे 15 किलो हेरोइन डाल दी थी, उस वक्त इंसानी हकूक़ कहाँ थे? क्या अपोजिशन लीडर को सजाए मौत की चक्की में इंसानी हकूक़ के मुताबिक डाला था? सियासी मुखालफिन की बहनों बेटियों को सजाए मौत की चक्कियों में इंसानी हकूक़ के मुताबिक डाला था। राना सनाउल्लाह ने सवाल किया कि सहाफ़ियों की हड्डियां पसलियां तोड़ी, उस वक्त इंसानी हकूक़ कहाँ थे? पुलिस के सर खोले, पेट्रोल बम, गोलियां और गुलेले चलाई, क्या ये सब इंसानी हकूक़ के मुताबिक था? राना सनाउल्लाह ने सदर आरिफ अलवी को मशवरा दिया कि इमरान खान को ख़त लिखिए कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस करे, उससे कहें तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग का अदालत में जवाब दे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लेने के अमल का आगाज कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत कुनिंदा को खत लिखकर बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी। दीगर 3 शिकायत कुनिंदगान को भी मुसद्दिका कॉपियां जमा कराने का कह दिया गया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 4 शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। मुश्किलात जितनी भी गंभीर हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उनसे मुकाबला करने का जज्बा इससे ज़्यादा बुलंद है। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट। कहती हैं, ऐलानात तो हर कोई करता है, मगर जो इन ऐलानात को हकीकत बनाने के लिए मैदान में उतर जाए उसको शहबाज शरीफ कहते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुश्किलात को शिकस्त देगा। मुश्किलात जितनी भी गंभीर हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उनसे मुकाबला करने का जज्बा इससे कहीं ज़्यादा बुलंद है। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। मरियम नवाज का कहना है कि ऐलानात तो हर कोई करता है, मगर जो इन ऐलानात को हकीकत बनाने के लिए मैदान में उतर जाए उसको शहबाज शरीफ कहते हैं। मज़ीद कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुश्किलात को शिकस्त देगा। अब तक 42 लाख अफराद को मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए जा चुके। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान और सिंध में भी मुफ्त आटे की तकसीम जल्द शुरू हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान खान मुल्क में खाना जंगी और इंतशार चाहता है। आवाम को सस्ते पेट्रोल की फराहमी जल्द शुरू की जाएगी। और अब बात मौसम की, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश और जालाबारी। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने रमज़ान का पहला पूरा अशरा ठंडा गुजरने की पेशगोई कर दी। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान। डेरा बुगटी में बारिशों से पहाड़ी नदी नालों में तूग़यानी आ गई। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने रमजान का पहला पूरा अशरा ठंडा गुजरने की पेशगोई कर दी। लाहौर में वक्फे से बारिश और यालाबारी, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश होगी। लाहौर में बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निजाम मुतासिर, 65 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए।
सरगोदा, गोजरा, चनियोड, मुल्तान, दुनियापुर, लिया, ऊंच शरीफ, हारूनाबाद, रंगपुर, करोड़ लाल, ईसन और दीगर शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाह में फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान। लिया में चक 170 में मुसलसल बारिश की वजह से भागल माइनर में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से पानी गंदम के तैयार फसल में दाखिल हो गया। शाहबाद और गिरदनवा में शदीद तूफानी बारिश, सर्कुलर रोड पर सरकारी प्राइमरी स्कूल की दीवार गिर गई। चौकीदार मौके भक्कर में शदीद आंधी के साथ बारिश और कहीं यालाबारी, जिससे गंदम की तैयार फसल तबाह। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। डेरा बुगटी में भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी आ गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। डेरा गाजी खान के कबाली इलाकों में मूसलाधार तूफानी बारिशों से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कोहे सुलेमान से आने वाले बरसाती पानी से हजारों एकड़ पर तैयार गंदम की फसलें तबाह हो गई। कबाली इलाकों के रास्ते मुनक़ता हो गए। कबाली लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। क्या सूरत हाल है, अली मूसा रजा से जानते हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में होने वाली मूसलाधार तूफानी बारिशों की वजह से कोहे सुलेमान से छोटे बड़े बरसाती नदी नाले जो हैं बह निकले हैं। कोहे सुलेमान के मुख्तलिफ इलाकों में 7 बड़े बरसाती नदी नाले जो हैं वो आए हुए हैं, जिसमें सांगड़, सूरी लुंड, सखी सरवर, मिठावन, वडोर और दीगर जो इलाके वहाँ से बरसाती नाले जो हैं बह निकले हैं। अभी तक जो है वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। इन आने वाले बरसाती नदी नालों और बारिशों की वजह से हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। कबायली इलाकों के रास्ते मनक़ता है। काश्तकार इंतहाई परेशान है। मेरे साथ सरवर के साबिक काउंसलर पीरबाज खान मौजूद हैं। पीरबाज, फसलें तबाह हो गई हैं, रास्ते मनक़ता है, क्या परेशानी है? परेशानी बहुत है सर, इतना कि काश्तकार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। मेहरबानी करके हुकूमत से हम अपील करते हैं, जो कुछ हो सके मेहरबानी करें, हमारी मदद करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो काश्तकार हैं वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। अगर कैमरामैन मेरा दिखा सके तो ये बड़ी तादाद में बरसाती नाला सखी सरवर आया हुआ है, जिससे जो है फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। गंदम की फसल जो पककर तैयार हो गई थी, इन बरसाती नदी नालों के आने की वजह से वह तबाह हो गई है। अभी भी गरज चमक आप देख रहे होंगे कि वक्फे से मूसलाधार तूफानी बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि बरसाती नदी नालों के करीबी आबादियां जो हैं वो चौकस रहें, क्योंकि करीबी आबादियों को अगर मजीद नदी नालों में तुग़यानी है तो खतरात लाख हो सकते हैं। तो इस हवाले से इंतजामिया जो है वो चौकस है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट बैंक का बड़ा फैसला, दरामदात पर डॉलर कैश मार्जिन की शर्त 31 मार्च तक खत्म कर दी गई। सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामद पर कैश मार्जिन की शर्त आयद की थी। कैश मार्जिन की शर्त दरामदात महदूद करने के लिए आयद की गई थी, लेकिन अब बड़ा फैसला किया है स्टेट बैंक ने और दरामदात पर डॉलर कैश मार्जिन की शर्त 31 मार्च से खत्म कर दी गई, जिसका बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। हफ्तावार महंगाई की शरह 46.65% तक जा पहुंची है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई 1.80% बढ़ी। माहाना 44,000 रुपये आमदन वालों के लिए महंगाई 48.35% हो गई। एक हफ्ते में 26 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 769.12 रुपये महंगा हुआ। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत तकरीबन 42 रुपये बढ़ी। आलू 6 रुपये किलो और केले 21 रुपये 57 पैसे दर्जन महंगे हुए। चावल 4.59 रुपये और दाल माश 6.5 रुपये किलो महंगी हुई। 2.5 किलो घी का डिब्बा तकरीबन 9 रुपये महंगा हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए 24 न्यूज़।